Continuation of the lesson, page number 36. Page number 36, continuation of the lesson from the beginning. In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? Monarch pupa के ऊपर 12 tiny gold spots दिखाई दिया. He was trying to find out what was that. Everyone assumed the spots were just ornamental. सबने ये सोचा ये जो स्पॉट ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटेड है, सजावट है. Albright said. But Dr. Urquhart did not believe it. लेकिन डॉक्टर इसको विश्वास नहीं किया. It was not a decorated item. It is something more than the decorated item, ornamental. To find the answer, Albright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. To know about that, they had to find out a device. And with the help of that device, they found out that the spots were producing a hormone which was necessary for the butterfly's full development. उसका अंदर से कोई हार्मोन उत्पन्न करता है that was necessary for the full growth of butterfly. This project won Albright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. ये जो आविष्कार है उसको काउंटी फेयर में फर्स्ट मिला, इंटरनेशनल लेवल में जाने का मौका भी दिया. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. इंटरनेशनल लेवल में वो जूलॉजी में थर्ड प्लेस लाए. ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. इसके बाद उसको एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का मौका भी दिया गया. एंटोमोलॉजी मीन्स इंसेक्ट्स का जो स्टडी होता है तो उसको कहते हैं विज्ञान होता है, उसे कहता है कीट विज्ञान कहते हैं उसको. उस लेबोरेटरी में काम करने का मौका भी मिला समर सीजन में. As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiments on the monarch pupa. monarch pupa के ऊपर वो अपना परीक्षण जारी रखा. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. उस साल इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसको पहला स्थान मिला, जिसकी वजह से जो समर में आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का जो काम था उसको जारी रखने का मौका भी मिला. इन ए सीनियर ईयर ही वेंट ये स्टेप फर्दर. और आगे बढ़ते तो और भी आगे बढ़े. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग. उसने एक मोनार्क के पंख से सेल उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए परीक्षण किया. इन्हें कल्चर मतलब परीक्षण इधर का मतलब. and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales.
only if they are fed the hormone from the gold spot. उसने ये आविष्कार करके बताया कि दैट द सेल्स वुड डिवाइड, सेल डिवाइड होता है, टूट जाता, एंड डेवलप इन नॉर्मल बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई का रूप में बदल जाते हैं, बटरफ्लाई विंग स्केल्स, ओनली इफ दे वेयर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट. उसने ये भी आविष्कार किया जो उसके गोल्ड स्पॉट से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उसके मदद से उसके शरीर के अंदर वो कवरिंग हो जाता है. ये भी देख लिया. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. उसी काम के लिए इंटरनेशनल जूलॉजी फेयर में उसको पहला स्थान मिला. ही स्पेंड द समर आफ्टरनून ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी. फिर एक चांस मिला आर्मी सब लेबोरेटरी में काम करने का समर में. एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. इसके अलावा उसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने का मौका भी दिया गया. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. और उसके बाद अगले समर में वो पहला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चला गया था. वहाँ से वापस आके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसी गोल्ड स्पॉट का और हार्मोन का ज़्यादा पढ़ाई करने में लगा रहा. Using the laboratory's sophisticated instruments, advanced, he was able to identify the hormones' chemical structure. उसके मदद से वो हार्मोन स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करने लगा. Year and a half later, 1.5 साल बाद, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. उसने सेल लाइफ के नया जीवन के बारे में जानकारी दिया. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. उसने हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर एक्सरे द्वारा पढ़ाई किया. When he saw those photos, Ebright did not shout, "Eureka!" or even, "I have got it." जब उससे परीक्षण किया, उसका फोटो हाथ में आया तो उसने कभी चीखा नहीं यूरिका करके, और इवन आई हैव गॉट, मुझे मिल गया ये करके. यूरिका वैसे सक्सेस को कहते हैं. और ऐसे कोई मतलब रिएक्शन नहीं किया. बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल. उसको उसके पढ़ाई से, उसका हार्मोन के पढ़ाई से बायोलॉजी के कुछ सवाल का जवाब मिला. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. और उसका ब्लू प्रिंट है ना, डिज़ाइन, डीएनए का डिज़ाइन कैसा करना है इसका जानकारी मिला. डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. हेरिडिटी मीन्स equality pass from one generation to another or one parent to another parent. Underline the sentence. Learn by heart the line. Maybe the question will be there. What do you mean by DNA? DNA is the substance in the nucleus. Nucleus means दिखाई जाने वाला वही substance है, वस्तु है of a cell that controls heredity, जो हेरिडिटी को कायम रखता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक ही परिवार के. इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ. इस तरह से डीएनए जीवन का ब्लू प्रिंट मानकर वो परीक्षण करने लगा. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night, drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. ये कैसा होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, ड्राइंग बनाया. Together they later wrote the paper that explained the theory. और उसके बाद अखबार में देने के लिए दोनों मिलकर वो थियोरी भी तैयार कर लिया.
surprising. No one who knew him, Richard Albright, graduated from Harvard with the highest honors, second in the class of 1,510 students. किसी को पता नहीं था इस तरह के एक बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है. वो यूनिवर्सिटी का सेकंड रैंक स्टूडेंट निकला 1510 में से. Albright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. उसने पढ़ाई वहाँ जारी रखा. There he began doing experiments to test his theory. जो थियरी उसने बनाया उसके अंदर से कुछ जानकारी और डेवलप करनी है तो उसका पढ़ाई जारी रखा. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर ये थियरी सक्सेस हो जाए जीवन का एक नया तरीका मिल जाएगा. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. अगर इसके आगे जानकारी प्राप्त करें तो उसको कंफर्म था कि सम टाइप ऑफ कैंसर को रोकने के लिए मदद करेगा और इसके अलावा अन्य डिजीज़ भी. All of this is possible because of Albright's scientific curiosity. उसका जिज्ञासा साइंस के बारे में जो था जिसकी वजह से ये सारे जानकारी उन्हें मिला. His high school research into the purpose of the spots on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. प्यूपा में दिखाई दिया वो हार्मोन वो आगे सेल लाइफ का जीवन के बारे में पढ़ने का मौका भी दिया. Richard Albright has been interested in science since the first began collecting butterflies. याद हो तो जहाँ बटरफ्लाई का कलेक्शन शुरू किया था वहाँ से लेकर इसको इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ. But not so deeply that he has no time for other interest. इसका मतलब ये नहीं कि और चीज़ों में ध्यान भी नहीं दिया. Albright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoor person. इसके अलावा वो कई फील्ड में बड़ा डिबेटर का रूप में बड़ा ओरेटर का रूप में ओरेटर ने भाषण देने वाला स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट. कैनोइस्ट मीन्स डोंगी चलाने वाले. डोंगी नहीं है डेंगी चलाने वाले का रूप में भी फेमस हो गया था. ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. उसके अलावा वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर है पर्टिकुलरली ए नेचर एंड साइंटिफिक एक्सिबिट. और साइंस से रिलेटेड जो भी फोटोग्राफी करना है तो उसमें वो ज़्यादा रुचि रखा करा भी. इन हाई स्कूल रिचर्ड अलब्राइट वाज ए स्ट्रेट स्टूडेंट. सीधे बताऊँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे ए ग्रेड वाले. बिकॉज लर्निंग वाज ईजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब. वैसे तो उनको ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब ये नहीं था वो सब जानता था. इट वॉज ईजी फॉर हिम टू लर्न समथिंग. लेकिन उसने सोचा इतना टाइम मेरे पास है इतना मुझे दिमाग लगाना नहीं पड़ता तो मैं अदर वे में क्यों नहीं मोड़ूँ. इसलिए वो डिबेट में ध्यान दिया. कई क्लब में ज्वाइन किया. ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर. रिचर्ड वेयरर उसका तारीफ करने वाले का किसी का तलाश किया. एंड इज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स. और वहाँ पर रिचर्ड वेयरर मिला तो वो उसका एक मददगार बना. एंड मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. तब मुझे अच्छा दोस्त मिला था वही था उनका सोशल स्टडीज़ टीचर. ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज. अलब्राइट से तो उसने कहा कि उसने मुझे नया प्रचोदन दिया. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. मिस्टर वेयर सेड. वेयर ने बोला वुड ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा एफर्ट. ये तो एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा करते रहता है. What pleased me was there was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. ये रात को जो भी परीक्षण करना है करने के साथ साथ डिबेट में 4 घंटे एक्स्ट्रा दिया. इसका मतलब हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन इसके पास टाइम ही टाइम था. वो सारा टाइम इस्तेमाल किया. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. मिस्टर वेयर कंटिन्यूड. उसने कहा कि बस कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी है इसका बट नॉट इन ए बैड सेंस. बेकार तरीका से नहीं. ही एक्सप्लेन
वो फर्स्ट मिले नहीं मिले, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रखता है ताकि कुछ नया खोज हो जाए. And he explained Richard was not interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. वो सोशल स्टडीज टीचर कहते हैं कि बस उसको इनाम मिलने से कोई रुचि नहीं है, उसको एक नया खोज का मतलब रुचि है. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. वो इसीलिए लोगों को अट्रैक्शन पकड़ना चाहता था ताकि वो आगे अच्छा काम करें. फॉर द रेस्ट रीजन्स ही वांट्स टू बी द बेस्ट. और दूसरी बात बता दूं, उसको सबसे अच्छा बनना चाहिए था. दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के जीवन में ये तो होना भी ज़रूरी है. स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड. एक्सेलेंट. फर्स्ट रेट मीन्स एक्सेलेंट. वो ऐड क्यूरियोसिटी, आप उसमें अपना जिज्ञासा बढ़ा दो. एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न. जो आप पाना चाहते हैं उसी के लिए मेहनत करो. एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़. एब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज़ थे. एंड फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. अब बताऊं तो आपको याद होगा, जिसकी मम्मी ला के दिए वो किताब कौन सा, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. Richard Albright has never lost his scientific curiosity. साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इसका मन से कभी नहीं हटा, उसी को मन में रहते रख कर वो काम किया. यही है मेकिंग ए साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. वी हैव टू वर्क हार्ड. इवन इफ वी आर नॉट साइंटिस्ट बट वी आर स्टूडेंट्स. वी वांट टू लर्न द थिंग्स वी लर्न, दैट वी हैव टू keep in our mind. We should get curiosity about to know things, then we will get success and we can be the first rate student. People say that he is a first rate student, so work for that, you will get success. Okay.